हुआ मैम यहाँ पे क्वेश्चन हुआ मारो मारो मैम लोग ये एक्सक्यूज मी मैम सिर्फ थोड़ा बस थोड़ा पीछे ये लुक ये एक्सक्यूज मी वन सेकेंड एक्सक्यूज मी वन सेकेंड थैंक यू वन सेकेंड मैम या स्ट्रेट मैम मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे या पोज मैम लुक हियर थैंक यू वाइट करना क्या चलो थैंक यू। तेरे सनम आज रिलीज हो रही है तो कैसा फील हो रहा है, क्या बोलना चाहोगे? I'm feeling great. मोबाइल या तो रख लो या तो फिर कंटिन्यू Yeah, I'm feeling great. I've always grown up, listening to Bin Tere Sanam. It's been one of the biggest hits in the 90s. And doing the recreated version of it, I think I'm blessed because listening to that song and now doing it on its own, I think it's a dream come true for me. 1991 की ये फेमस सॉन्ग से देखा जाए तो फिर और इसी सॉन्ग से मूवी का नाम तक अभी तक लेते हैं लोग देखा जाए तो फिर इसी सॉन्ग से मूवी का पैसा कोई प्रेशर था देखा जाए तो सॉन्ग करते वक्त कि कुछ खराब हो जाए नॉर्मली काफ़ी सॉन्ग्स भी खराब हुए रिक्रिएट में Yeah. No, I think because one it's Venus Worldwide Entertainment. They have always made some beautiful songs, so you don't have that pressure that the song will be not right or something like that. I think, and plus when I heard the song, I was just onto it that I really want to do it because it's one of the most beautiful numbers, and when they have recreated it, it's come I think even more beautiful for me. Thank you. Chemistry, yeah, of course. I think while doing the song also, you can see it on the screen. It's just showing there. So I'm very happy, I can say. Yeah. लोकेशन के बारे में बात करें तो किस तरह के लोकेशन पे शूट हुआ है उसके बारे में जानना चाहेंगे क्या ऐसी यादगार चीज़ है आप जब शूट कर रहे थे सॉन्ग के लिए कुछ उसके बारे में जानना चाहेंगे Actually, when we shot, it was all in the snow. We shot. The temperature was so low, and there was so much of snow. The locations were beautiful. So I think आधा आपका तो वही निकल जाता है location देख के कि ठंड लग रही है या नहीं. So I had great fun while shooting. Plus the team is so nice, and we all had so much fun. So I think the shoot went. The locations were absolutely beautiful. I felt I'm in heaven, honestly. जहाँ पे शूट रहा था काफ़ी कोल्ड प्लेस था जैसे कि आपने बताया Yeah. तो कुछ फनी मोमेंट्स हुए थे शूट के दौरान या कुछ ऐसे मोमेंट? Lot of moments. I think every moment was very funny because when you're shooting in cold and you're just shivering there, and when it has to be a take, you have to be all normal and doing it. So it was all fun, I think. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. थैंक यू चलो बाय Thank you. Right, thank you. क्या कहना चाहेंगे आज कितने एक्साइटेड आज सॉन्ग लॉन्च है बहुत ही पसंद किया जा रहा है I'm really happy and I'm really thankful to Venus and Champak sir to give me this opportunity. It's fantastic and I'm sure people will love it too because हमारा जो last song था वादारा सनम सब लोगों ने बहुत पसंद किया था और हर किसी को वो गाना देख के बहुत खुशी मिली थी and I'm sure this Bin Tere Sanam will create a same magic in audiences. So yes, I'm very happy here. Thank you. सॉन्ग की बात करेंगे ऐसा सॉन्ग है उसको सदी का 1991 का उसको भी अभी तक याद किया जाता है। कुछ प्रेशर था जब आपको सॉन्ग मिला था आपने वीडियो देखा था पुराना वाला या कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, there was no pressure absolutely. There was no pressure because पता था हम लोग क्या कर रहे हैं exactly. So वो एक आइकॉनिक सॉन्ग था उस एरा का ये फिर से रिक्रिएट किया है ये फिर से इसको अरेंज किया है और सिंगर्स ने क्या कमाल का काम किया है इसमें वाओ आई एम रियली थैंकफुल टू भूमि त्रिवेदी एंड बिलाल
कि दे हैव संग इट सो फैंटास्टिकली कि उसके बाद जो सुन के जब हम उस पर एक्टिंग करते हैं तो वो करने में एक अलग ही फीलिंग आती है. वीनस के साथ काम करना कैसा मिला? Venus is like a home to me, and संडे में so Venus is like a home to me right now. Basically, the past song was with them, and Champak sir is always like a father to me. I always look up to him like a blessing. Sir ने मुझे मौका दिया. हमारा last song बहुत hit था market में. Everybody have loved it worldwide, and I'm sure this Bin Tere Sanam will create more magic in the market. Bilal's voice is really suited you very well. Bilal's voice is really suited Yes. you. What do you have to say about that? कमाल के सिंगर है वो, एंड उनके मैंने पहले ही बहुत सारे गाने सुने हैं, तो कनेक्ट करने में टाइम लगा नहीं मेरे को. इट वॉज जस्ट फ्यू सेकेंड्स, द रिदम गोज इन टू माई हेड, उनके लिरिक्स थे, उनकी आवाज़ थी, एंड द मैजिक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. सो यू ऑल सी इट हियर. हमने प्रोमो देखा, आपका और कशिश का केमिस्ट्री काफ़ी यूनिक और काफ़ी नया लगा. Right. तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे किस तरह से? कशिश बेसिकली शी इज़ अ नेचुरल एक्टर, और हमें इतनी साथ में एफर्ट्स करने नहीं पड़े. इट जस्ट कम्स टू अस वेरी नेचुरली. एक इंट्रैक्शन, एंड उसके बाद जो मैजिक था दैट वाज ऑल लोकेशन, म्यूजिक एंड सिनेमाटोग्राफी. सो इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस. सो इट वाज इजी, नॉट सो हार्ड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Am I allowed to disclose location? So basically, we shot this fantastic song in Kashmir, basically Gulmarg. Done, guys? It was above 16,000 feet from sea level, and it's all snowy. Temperature was minus 16 there. It was freezing out there. Yes, we shot it. Must be beautiful. मैडम स्टेट Chhampakji state, excuse me, state, madam. सर आप बीच में आइए सर. Yes, Thank you. सर एक सोलो. Yes. उनका तो नहीं है. Yes sir. सर यहाँ पर सब लोग करें. Look. Yes, sir. Sir. सर एक आपका सोलो बचा. हाँ, हेलो. क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, ये ऑलरेडी ये गाना बिन तेरे सनम जो सॉन्ग है वो पहले भी ऑलरेडी इतना बड़ा हिट है, जो शाहरुख सुल्तान साहब ने और जतिन ललित जो उसके मेन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने क्रिएट किया हुआ था गाना. ये इतना बड़ा हिट गाना है, जो इसके पहले मैंने वादारा सनम किया था. तो मुझे लगता है कि इसके बाद बिन तेरे सनम एक ऐसा गाना था जो मतलब कल्ट है, जो हर जगह मतलब यंगस्टर में बहुत पॉपुलर है. चाहे वो एक्चुअली दिखता है तो रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन रोमांटिक के अलावा ये पब में भी बजता है, डिस्को में भी बजता है. तो हम लोग ने ये गाना चुना था. तो ये गाना बनने के बाद फिर हमने म्यूज़िक डायरेक्टर इसमें इसको रिक्रिएट कैसे किया जाए. देखिए, ये जो गाना अभी हमने बनाया ना, वो सिर्फ हमने मुखड़ा यूज़ किया. हमने पूरा गाना देखेंगे ना तो लिरिक्स पूरे डिफरेंट है. सिर्फ वो हुक लाइन जो बिन तेरे सनम की वो इम्पॉर्टेंट है, तो वो कि वो आज के जनरेशन को टच करें, तो इसके लिए हमने वो उस लाइन को यूज़ किया है. लेकिन जो म्यूज़िक विक्रम ये मोन्टोरोस जो नया लड़का है, उसने उसको पूरी तरह से नया गाना बनाया. उसका अरेंजमेंट बिल्कुल ही लग नहीं रहा है कि पुराना गाना, तो वो एकदम नया गाना बन गया. और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि भाई इसमें सिंगर क्या किया जाए. तो सिंगर के तौर पे हमारे पास बहुत सारे चॉइस थे इसके लिए.
लेकिन बिलाल करके एक नया लड़का आया तो उसने भी इतना अच्छा गाया। जब एक बार ऐसे ही मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर ने रफ़ सुना के भेजा था, तो मैंने जब उसको सुना तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद जब लेट फीमेल की में भी बहुत हमने सिंगर ट्राई किए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें भूमि त्रिवेदी जो बहुत ही जिसने रामलीला के भी गाने, रासलीला के गाने गाए, तो वो भी बहुत पॉपुलर थी, उन्होंने गाया तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस। ये सब होने के बाद गाना तैयार हो गया था। अब हमने फिर आगे हमने सोचा अब इसको पिक्चराइज ऐसा कुछ यूनिक किया जाए कि भाई पुराना गाना तो अच्छा ही था, पिक्चराइज भी अच्छा हुआ था। तो फिर हमारे डायरेक्टर साहब इसमें आए, रॉय साहब के साथ मैं बहुत काम कर चुका हूँ पहले। वादारा सनम इन्होंने किया हुआ है, और पहले भी अर्लियर भी मेरे पास इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है, अच्छा काम करते हैं बहुत। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर हम ये गाना बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसकी लोकेशन डिफरेंट होनी चाहिए थोड़ी, और लोकेशन के अलावा इनका मतलब कि इसमें कास्टिंग बहुत करेक्ट होनी चाहिए, कास्टिंग और लोकेशन। और उसके बाद तो ये खुद डायरेक्टर हैं तो ही नोज़ इस जॉब। फिर हमने डिसाइड किया कि हम कश्मीर में इसको कश्मीर में शूट किया जाए, इन्हीं का आइडिया था। तो वो भी हमें ऐसी एक सिचुएशन में मिल गई कि वहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस भी थी वहाँ पे, लेकिन उस टाइम उस पीरियड में हम उसके 2-3 दिन पहले चले गए, तो वो गाना वहाँ शूट हो गया। और जो यहाँ पे इसमें लड़की आप देख रहे हैं कि अपने विपिन शर्मा और कशिश बोरा, ये जो दो पेयर है एकदम फ्रेश लग रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और दोनों ने इतनी मेहनत की है, ये लोग पहले बाहर भी काम कर रहे हैं इसे। और ये लड़की जो कशिश बोरा है वो ऑलरेडी साउथ की 2 फिल्में कर चुकी है, कर भी रही है, शूट भी चल रहा है इनका। बहुत मेहनती लड़की है और अच्छा लिपसिंग किया है इसने, अच्छा काम किया है। एक्सप्रेशन देखिए, आप जब गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई नई, ऐसा आपको उसको देख के उन पेयर को लगेगा कि नहीं कि नए हैं एकदम। कभी कभी होता है कि हम लोग गाना शूट करते हैं तो कोई चीज़ कमी रह जाती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, इसमें बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल जो सारा पैकेजेस है, जैसे कि लिरिक्स राइटर भी है इसमें, नया लिरिक्स राइटर, बहुत सारे लोग नए हैं इसमें, लेकिन गाना देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार, ये गाने में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये किसी अच्छे गाने से कंपेयर न किया, तो एक ही बिट। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस एल्बम के बारे में? आपने नए लड़के लड़की को क्यों लिया? हमने नए लड़के लड़की को क्यों लिया? हमें ये गाना, क्योंकि पुराना गाना तो बहुत ही अच्छा ही था, और ये नए गाने में हमने विपिन के साथ हमने ऑलरेडी वादारा सनम में काम किया हुआ है, तो वो नया नहीं है। और ऑलरेडी उसने करीब 200 एड फिल्म्स किए हुए, तो ही इज़ अ वेरी पॉपुलर फेस। और कशिश को हमने लिया क्योंकि वो बहुत मतलब एक फ्रेश फेस था, स्वीट लुकिंग थी, इसकी वजह से हमने उसको कास्ट किया। टॉक अबाउट दिल तेरे सनम, ये 90s का बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग, तो उसको डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग तो था, क्योंकि पुराना गाना इतना हिट था, तो इसके वजह से हमने ये गाने को टोटली, और गाना भी एक नए फॉर्म में था, तो हमने इस गाने को सोचा कि एक अच्छा लोकेशन पहले तलाश करते जहाँ पे हम ये गाना शूट कर सकें, और फिर हमें लोकेशन मिली, फिर स्टोरी बोर्ड बनाया, और फिर हमने शूट किया। किससे बचने के? कॉपीराइट तो पुराना गाना तो वीनस के पास ही है, वीनस का ही है, और ये भी गाना हमने वीनस के लिए किया है, तो कॉपीराइट का तो कोई सवाल ही नहीं है। सर देखा जाए तो प्रोमो की बात करें तो प्रोमो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और काफ़ी ठंड में शूट हुआ है। देखा जाए तो प्रोमो हमने -15 में शूट किया है। प्रॉब्लम हुई थी इस दौरान? प्रॉब्लम तो काफ़ी हुई थी हमें। कोई शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब हमने कास्ट के लिए बताया जा सकता है कि हमने हर शॉट के बाद उन्हें ब्लैंकेट से ओढ़ा जाता था, और उसके बाद फिर थोड़ी देर वेट करके फिर हम ब्लैंकेट हटाते थे, फिर शॉट लेते। धूप आती थी जाती थी, इतनी हवा थी वहाँ पे, तो ठंड में हालत सबकी बहुत ख़राब थी। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। मैम यहाँ पे कांग्रेचुलेशन भूमि, ये ऐसा सॉन्ग है जो अपने में काफ़ी फेमस है, काफ़ी उस एरा का सबसे बड़ा सॉन्ग है। इसमें आपने आवाज़ दी, कृष्णा मूर्ति को आपने, कविता कृष्णमूर्ति को आपने आवाज़ उसको ये चेंज किया है, तो कुछ कहना चाहोगे कितना प्रेशर था? प्रेशर तो मतलब अभी भी है और ज़िंदगी भर रहेगा प्रेशर, क्योंकि सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी वीनस को, चंपक जैन जी को,
जिन्होंने मुझे मौका दिया, और ऑफ कोर्स नीरज मिश्रा जी जो ऑक्टेव एंटरटेनमेंट के ओनर हैं, उनको मैं दिल से शुक्रिया अदा देना चाहती हूँ, क्योंकि ये गाना कम्प्लीटली अनमैचेबल है। चाहे आप कितने भी कवर्स निकाल लें या कितने भी उसको रिवैम्प कर ले, कितना भी रिक्रिएट कर ले, लेकिन जो एक ओरिजिनल गाने का जो चार्म है वो कभी नहीं जाता है और वो हमेशा रहता है। लेकिन उससे इंस्पायर होते हुए जो आप गाना बनाते हो, वो जो एटमॉस्फेयर अभी बहुत हेल्दी हो चुका है, इन सब चीज़ों को, रिक्रिएशन को, रिवैम्पिंग को एक्सेप्ट करने की जो एक स्पिरिट है, वो बहुत ही पॉजिटिव है। क्योंकि अभी सारे मूवीज़ में कहीं ना कहीं एक दो गाने ऐसे हैं जो पुराने आई थिंक पुराने 90s या 80s के डेकेड से लिए गए हैं, और उन सभी गानों को रिवैम्प करके प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आई थिंक अभी की जो जनरेशन है वो भी पसंद करती है। और एक मैसेज ये भी जाता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गाने शायद कहीं अगर खो गए हैं, तो अभी की जो ये ट्रेंड निकला है रीवैम्पिंग का, वो शायद वो हेल्प कर रहा है जो अभी की प्रेजेंट जनरेशन है उसको ये बतलाने के लिए कि पहले के गाने भी बहुत प्यारे थे, और हम उन्हीं गानों को लेकर शायद और रिक्रिएशन और हमारे व्हाटएवर बेटर वी कैन डू। सो उस चीज़ से हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम कुछ अच्छा ही प्रेजेंट करें, हम किसी के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हैं। बस ये एक जो लोग समझते हैं शायद कि कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं तो हम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उस गाने से इंस्पायर होके हम और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और आई थिंक ये गाना नहीं होता तो शायद बिन तेरे सनम ये इतना बड़ा ये इवेंट नहीं होता, बिन तेरे सनम गाना नहीं होता, रिक्रिएट नहीं होता, तो शायद आई एम रियली थैंकफुल टू उदित नारायण जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, जतिन ललित जी, जिन्होंने इस गाने को बनाया है। और पूरी टीम, आई थिंक जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस रहे हैं, जो पूरी फिल्म जिसके थ्रू ये गाना हिट हुआ है, आई थिंक वो हिट नहीं होता तो शायद हम इंस्पायर होकर आज गाना नहीं बनाते। तो द फर्स्ट क्रेडिट गोज़ टू जिन्होंने ओरिजिनल जो गाने के मेकर्स हैं उन सबको ये क्रेडिट जाता है। और उसके बाद बिल्कुल बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। Thank you so much. And one more thing that I would want to add is कि I think कशिश and sorry मैं इनका नाम भूल रही हूँ, कशिश एंड विपिन, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया एंड सिनेमाटोग्राफी इतनी प्यारी रही है। एंड ऑफ कोर्स विक्रम जी और बिलाल ने बहुत अच्छा गाया है, शेखर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, एंड एवरीबडी आर आई थिंक कोरियोग्राफर जो है हमारे अक्षय जैन जी, एंड जिन्होंने डायरेक्ट किया है सायन रॉय जी, सभी को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। बिकॉज ये शायद टीम वर्क इस तरह से पावरफुल नहीं होता तो शायद ये गाना लोग पसंद नहीं करते, और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सभी लोग, और आज ही रिलीज़ हुआ है गाना और ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ मिल चुके हैं, एंड थैंक्स टू ऑल। मैम देखा जाए तो ये 91 के बाद में 2 से 3 बार ये ऑलरेडी रिक्रिएट हो चुका है इस सॉन्ग में। जी, तो जब आपके पास ये ऑफर आया तो क्या माइंड में क्या था फर्स्ट टाइम में? मैं बिल्कुल खुश हो गई थी, क्योंकि ये ऐसा एक गाना है कि शायद किसी और भी सिंगर को आई थिंक 25 साल बाद भी अगर ये रिक्रिएट होता है, और जो सच्चा सिंगर है, जो सच्चा आर्टिस्ट है, वो डेफिनेटली इस गाने को पहली बारी में हाँ बोलेगा, क्योंकि ये गाना ही इस तरह से है। और आप भी देख सकते हो, शायद आपने ही सुना होगा इस गाने को, तो यू ऑल्सो वुड लव इट। और जितने भी रिक्रिएशंस अभी तक हो चुके हैं बिन तेरे सनम के, सारे हिट हैं। तो आई थिंक अगर लोगों को पसंद आया तो आई एम श्योर कि पीपल विल सिंग दिस। थैंक यू। Champak Jain, Director and DOP Sayan V. Vora. I'm sorry for that. Sayan V. Roy. छोटा ऐसा हो जाता है. All right, so featuring Vipin Sharma and Kashish Vora. You can clap, come on, yeah. Music recreated by Vikram Montrose.
our amazing singers Bhumi Trivedi and Bilal. Woo! Both the ladies look stunning today. Alright, so additional lyrics by Shekhar Astitwa. And our choreographer Akshay Jain. Whoa! So here we have the whole team of Bin Tere Sanam, and now we're gonna show you the whole masterpiece, which is gonna be right there. Alright, so now I request all our media and friends to kindly check out the video. जो आपके I request that's that. To call upon DJ Shazwell up on stage. So before we unveil the CD, we would like you to share your insight. सबसे पहले तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करूँगा, और आप लोग आए यहाँ पर उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ये गाना आपने देखा है कि 1990 का गाना है, जो अपने शाहरुख सुल्तान साहब, आप जानते ही होंगे उनको, और जतिन ललित जो म्यूज़िक डायरेक्टर इसके, और इन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया, इतना सुपर हिट हुआ, जो आज तक मतलब हर जगह, और बेसिकली रोमांटिक गाना होने के बावजूद भी ये दिस सॉन्ग ऑलवेज प्ले इन द डेस्क वगैरह, जितने भी यंगस्टर पॉप में बजता है ये गाना। तो सबसे पहले तो हमने वादारा सनम किया था, उसके डायरेक्टर भी सहनी थे, और उसके बाद जब हमने ये गाना सेलेक्ट किया तो वादारा सनम करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो सबसे पहले तो हमारे विक्रम जो आपके सामने, कहाँ गए, हाँ विक्रम इतने, मैं आपको बता दूं कि ये इतने गुणी है कि चंद दिनों के बाद आपको ये लगेगा कि हर फिल्म का म्यूजिक यही करेंगे, क्योंकि इतने गुणी है और इतने टैलेंटेड है। इनके लिए एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि ये मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की इस गाने को, मतलब पूरे करके उसके बाद उन्होंने मुझे सुनाया, बहुत बार चेंजेस हुए, सबर हुए। फिर हमारे जो राइटर साहब जिन्होंने ये गाना तो मजनू साहब का लिखा हुआ, आपको पता है कि इसकी एक लाइन भी हम कहीं उसके बारे में बात करना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इन्होंने इसको उस मुखड़े को इतना अच्छी तरह से निभाया है। उसके बाद जब ये गाना तैयार हो गया तो ये पिक्चराइजेशन के लिए हमारे पास आया, तो हमने सबसे पहले तो रॉय साहब को हमारे गाना सुनाया, रॉय साहब का कॉन्सेप्ट अच्छा था। उसके बाद कास्टिंग की बात आई तो विपिन और कशिश वोरा आपके सामने हैं। विपिन तो मेरे साथ पहले भी काम कर चुके हैं, कशिश ने पहली बार काम किया। दोनों ने आपने देखा कि लिपसिंग कितनी खूबसूरत कर रहे हैं लोग, इतना अच्छा कर रहे हैं, ऐसे पता नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लगा कि ये लोग मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। और जहाँ रहा सिंगिंग का सवाल है तो हमारे साथ बिलाल है, ये भी नए उभरते सितारे हैं। भूमि जी तो पहले ऑलरेडी सुपर हिट है, इन्होंने इतना अच्छा गाने को गाया। तो सारी टीम और हमारे अक्षय जैन साहब, सभी लोगों का, पूरी टीम का इतना अच्छा मतलब योगदान रहा इस पूरे एल्बम के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत खुश हूँ कि ये गाना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, पब्लिक उसको जितना जाता है। थैंक यू थैंक यू सर। सो भाई गाना पसंद आया? आवाज ही नहीं है, अच्छा लगा कि नहीं यार? एक नंबर। थक चुके हैं, लगता है खा पी के सेट हो गए हमारी मीडिया आज। So now I request the whole team to kindly unveil the CD. Can we get it? Yeah, thank you. Come close. Woo! Well,
Why not? I think I would love that. Media would love that. भाई इतना प्यारा गाना हमने देख लिया, सुन लिया, लेकिन जब आप सामने हैं और आपको बिना गवाए कैसे भेजेंगे? Please, let's you want to hear them? All right. ना दिल पे कोई जोर है ना खुद पे ही इख्तियार है, खुद से भी ज्यादा धड़कनों को तुझ पे ही एतबार है। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम मेरी जिंदगी, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी, हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। Congratulations to the whole team. I'll tell you what, रोंगटे खड़े हो गए जैसे आप गा रहे थे यहाँ पे बिलाल seriously. Alright, so team, all the best for the song and thank you so much media. भाई कशिश खो गई है कहीं पे, अच्छा मुझे कुछ बोलना है? Please, both of you, please share your experience. I'm really thankful to Venus, Champak sir, and our most talented director, Sayan B. Roy, Bhumi, Bilal, Vikram, Akshay, Kashish, and sir, जिन्होंने गाना लिखा है. I'm really thankful to each and everyone here because आपकी मेहनत से ये गाना यहाँ तक पहुँचा है. And अगर ये गाना यहाँ तक नहीं पहुँचता तो आज हम लोग ये शूट नहीं कर पाते. It was fantastic. The experience is amazing, and I'm sure the nation is gonna love it because the sound, the music, the magic, it's all there. So I'm sure everybody's gonna love it, and it will be a super hit song of the era. Thank you so much. Thank you. I'm really grateful to everybody. First, I want to thank media for coming here and being so nice. I want to thank Champak sir, Venus Worldwide Entertainment, and the whole team for being so nice. And whatever the song has come up, it's everybody's hard work. I just want to say thank you to each and everyone. Thank you. So now we would like you saying something because music को भी recreate आपने किया है Vikram. So yeah. No, not sing really. Just share your experience, how it was. Well, I feel very fortunate. Thanks to Champak ji for giving me this cult song because as we all know that it's a classic song. And yes, I was very nervous how I'm gonna so कैसे remake करेंगे और कैसा sound होना चाहिए. But then I'm lucky that we came up with something which is for the new generation. I hope they love the song. And Bilal is amazing, Bhumi is amazing. And then when we saw the video, we were all blown away. Thanks to Syan and both of them, they look amazing. Their chemistry is just out of the world. So I just hope it works. And thank you so much. So अब बारी आती है डायरेक्टर साहब की. थोड़ा सा सर आगे आ जाइए, आप मेरे साथ में एकदम खड़े हो गए. So sir, please share your experience about the whole video. We were shooting in -15 degree, and I'd like to thank Vipin and Kashish कि इन्होंने इतने सपोर्ट किया और इतने ठंड में भी हमारे साथ काम किया. And I'm thankful to Champak sir कि उन्होंने मुझे इस वीडियो में डायरेक्ट करने का मौका दिया. And I'm thankful to the entire team. And Jagrut was also there with us. Very active. Thank you. Thank you everybody. Thank you media once again for being a part of this launch. I hope ये गाना आप सभी को वाकई बहुत पसंद आएगा. And it is available on all the leading digital platforms. So download करिए, सुनिए और सुनाइए. Thank you team. Best of luck.